मुंबई में टिफिन सर्विस चालू करना बहुत इजी है बिकॉज वहाँ पे हाँ। लॉजिस्टिक सेट है। करेक्ट। तो अगर आप घर पे 10 डब्बा 20 डब्बा मॉर्निंग में बना लेते हैं तो वो आपका डब्बा वाला आएगा और वो आपका लेके जाएगा। लेके जाना। डिमांड तो इनफाइनाइट है, तो डिमांड का तो इशू नहीं है। आप कितना सप्लाई कर पाते हैं हाँ, आप, उस क्योंकि पे depend। पांडुराम 9 बजे आएगा डब्बा पिक करने, तब तक आप कितना बना लेते हैं। हम लोग मीरा रोड पे रहते हैं तो पांडुराम बहुत जल्दी आ जाता है मॉर्निंग में, सुबह 9 बजे आ जाता है। करेक्ट। हम 50-60 डब्बा घर पे बना लेते थे और वो उसको पकड़ा देते थे। What do you think for a beginner? What is the documents that is required to start off? For starting, 2 documents are important. One is labor license and another is food का FSSAI. Okay. These are compulsory. For Bangalore, BBMP trade license, labor license, food license, and GST if your turnover is more than 20 lakh rupees. When do you think we should start applying for these? How long do you think it's going to take? Hi, hello. We are here with Dinesh. Dinesh sir here, and he will give his introduction on this. Hi Archana. Hi. I'm Dinesh Yadav, basically from Indore, MP. I'm in Bangalore from 2010. I did my MBA from Indian Institute of Management, Bangalore. After that, I worked in corporate for some time. In total, I worked for about 6 years in corporate, and then we started Mumbai Tiffin in Bangalore about 11 years back. Although my journey of restaurant is almost 15 years old, Wow. we started food business in Indore as a Okay. tiffin service. We did it in Mumbai also. That's why the name Mumbai Tiffin. Mumbai Tiffin. Okay. You know, we used to send tiffin, the lunch box, Oh. using the Mumbai Dabba Wala. Got it. Got So it. when we were registering the website, we thought, why not the keywords? Someone is searching tiffin service in Mumbai. What could be the best name? Mumbai It Tiffin. should be Mumbai Tiffin. Wow. So that's why we named it Mumbai Tiffin. Okay. So 1 year in Indore, we did tiffin services. Then 1 year on and off in Mumbai. Then I was working, and then somewhere it was there in my mind. So we then started as a part-time business. I was working and I started this restaurant with 4 tables. MumbaiTiffin.com. We thought the name is already registered, so why not use the same name? Continue the same name. And you know, when you start, you generally think big. Like I open a restaurant in London, Okay. people should know that it's an Indian restaurant. Indian. So Yes. when they hear Mumbai, they will probably relate. Correct. Correct. So correct. you think about opening your outlets in London or New York, and when you start with that vision. Then the reality will hit you after some time. But this is one of the reasons that why we named it Mumbai Tiffin. Mumbai Tiffin. Okay. So it's a simple, homely food concept. Okay. We do sell dal, chawal, roti, sabji. Simple, Okay. simple thali. Our first menu, actually, we were not having a menu, printed Okay. menu when we started. Okay. We were having just 4 tables in a 300 square feet area, Okay. and we used to sell only one item, that is thali, Acha. a North Okay. Indian homemade thali. Thali. Okay. That most of the people eat at home Okay. in North India. Like if you go to MP or UP or Bihar or even any North Indian places, what they eat at home is dal, chawal, roti, sabji. Sabji. So we used to sell that at 80 rupees. The price is fixed. There was no printed menu. There only one item. Whoever is coming to our outlet, we are serving thali. So lunch and dinner, both time we are serving thali. Right. Then after some time, people are saying, why not have some other item? So on Saturdays, we started keeping aloo paratha. Only Achha. one paratha, aloo Uh-huh. paratha. So people have given good response that yeah, aloo paratha is good. We were having a specialty from our area, Mumbai. Indore, dal bati. So we started serving dal bati, or to be precise, dal bafle on Sunday. थोड़ा सा डिफरेंस होता है दाल बाटी और दाल बाफले दाल में। बाफले। तो हम लोगों ने दाल बाफले सर्व करना संडे को शुरू किया और वो भी बहुत बड़ा हिट हुआ। तो उसका लेकिन प्री ऑर्डर होता था। अच्छा। बिकॉज इट्स ए लॉन्ग प्रिपरेशन टाइम, आपको पहले बॉईल करना होता है, फिर उसको सेकना होता है। तो वो भी काफी हिट हुआ और हम इस तरह से हमने देखा कि यार ये चीज चलती है, ये चीज नहीं चलती। तो हमने कहा कि पराठे का भी डिमांड है, तो हमने फिर धीरे से पराठा भी इंट्रोड्यूस किया। आज भी हम लोग के मेन्यू में ज्यादा कुछ नहीं है, 11 ईयर्स हो चुके हैं। हमारे मेन्यू में थाली है और पराठा है, पूड़ी है, पोहा है, बस ये 4 ही आइटम है। थोड़े से कॉम्बिनेशंस हैं, इसी को थोड़ा सा इधर उधर करके हम बना देते हैं, बट हम सिंपल होममेड फूड बनाते हैं। Any reasons why it is this simple? एक्चुअली द इंस्पिरेशन जो है इसका, वो जब मैं इंदौर में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं भी किसी कपल के यहाँ खाना खाने जाता था, Okay. घर का खाना।
Okay. तो वो लोग घर पे खाना खिलाते थे. At that time it was 600 rupees a month, both the time. Oh, wow. So 60 meals in 600 rupees. Wow. It was double the price of what is available otherwise. Okay. So because they were maintaining hygiene, it was homely food, it was simple food. So that was the inspiration. वो मेरे दिमाग में कहीं पे था कि यार ये बढ़िया बिजनेस है, ये बिजनेस बन सकता है. ये मैं इंजीनियरिंग के टाइम पे भी सोच रहा था कि कितना बढ़िया बिजनेस है. मतलब अगर आप घर का सिंपल खाना बनाना है और बेचना है, मतलब भीड़ लगी होती थी उनकी. जैन श्री टिफिन सर्विस नाम है उनका. इंदौर में शायद आज भी होंगे वो, मुझे पता नहीं. बट घर पे हस्बैंड वाइफ दोनों थे, 2-3 कुक थे उनके पास, और उनके भीड़ लगी होती, क्योंकि लोगों को सिंपल खाना खाना होता है अफोर्डेबल प्राइस पे. तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि यार सिंपल खाना अगर बनाया जाए तो वो बिकता है. दूसरा, कई बार क्या होता है, और आपकी क्विजीन जो होती है ना, वो डिसाइड होती है. कई बार जब आप रेस्टोरेंट ओपन करते हैं तो क्विजीन डिसाइड होती है कि आपको पर्सनली क्या समझ में आता है ना, और क्या पसंद है. अगर मुझे इटालियन समझ में ही नहीं आता तो मैं इटालियन रेस्टोरेंट नहीं खोल पाऊंगा, और खोलना भी नहीं चाहिए. आइडियली खोलना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप उसको रिलेट ही नहीं कर पाएंगे. मेरे को अगर पिज्जा खुद को समझ में नहीं आता है तो मैं पिज्जा आउटलेट अगर खोल भी लूंगा एज ए बिजनेसमैन, तो शायद मैं उसमें अच्छा नहीं कर पाऊंगा. So do not enter if you don't know. Yeah. So मैंने देखा कि यार मुझे तो सिंपल खाना पसंद है, दाल चावल रोटी सब, तो चलो वही स्टार्ट करते हैं. और चूंकि एज ए एंटरप्रेन्योर हम लोग जब शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि जो समझ में आता है वो करते हैं, फिर देखेंगे, फिर वही चलने लगता है, और फिर हम सोचते हैं जो चल रहा है फिर उसको क्यों ट्रिक किया जाए, फिर उसी को हम लोग एक्सपांड करने लग जाते हैं. तो आज हम चाहें तो कर सकते हैं, हम लोग साउथ इंडियन भी रख सकते हैं. साउथ इंडियन शेफ देंगे तो शायद साउथ इंडियन भी कर लेंगे. साथ में हम शायद चाइनीज स्टार्टर भी रख सकते हैं, हम लोग इंडियन स्टार्टर भी रख सकते हैं. फिर हम बोलते हैं यार इतना इसमें करेंगे, इसकी बजाय इसी में जो अपना चल रहा है उसी में कर लेते हैं. तो दूसरा, फिर आपका एक मार्केट बन जाता है कहीं ना कहीं. फिर बहुत ज्यादा चेंज करना, आपकी पोजीशनिंग को चेंज करना ठीक भी नहीं होता, बिकॉज एक पोजीशनिंग हो जाती है एक ब्रांड की, कि people know your brand for that particular reason, कि आप घर का सिंपल साफ सुथरा खाना देते हैं. आपके लिए बता दें, जैसे हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो होता है हाइजीन. हम लोगों ने जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया है वो हाइजीन. टेस्ट हमारा बाद में आता है. हमारा खाना टेस्टी होगा कि नहीं पता नहीं, बट हमारे जो कस्टमर आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको हाइजीन चाहिए. तो आजकल जैसे सुपर मॉम्स हैं जो नहीं चाहती कि उनके बच्चों को कुछ भी खाना दिया जाए, तो वो बहुत ही सिलेक्टिव है. वो हमारा हाइजीन का जो कॉन्सेप्ट था, वो सिंपल फूड का, लो ऑयल लो स्पाइस, वो सब हमने शुरू से मेंटेन किया और वही चलता रहा. तो कहीं ना कहीं जैसे आपने पूछा कि ऐसा ही खाना क्यों बंद किया आपने, तो शायद मैं उससे रिलेट करता था. मुझे वो पसंद था, knew the background और मैं खुद वैसा पसंद करता था. तो मैंने कहा यार ये मार्केट में नहीं है. आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड मिल जाएगा. ठीक है, वो आपको टेबल के ऊपर धुआं निकाल देंगे लोग, है ना, लिक्विड नाइट्रोजन और सब कुछ आ जाएगा, लेकिन एक सिंपल मील आज भी आपको नहीं मिलता. मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि हम लोग बेंगलोर में बैठे हैं और आपको अगर एक सिंपल साउथ इंडियन मील जो कोई बनाना लीफ के ऊपर अच्छे से सर्व कर दे, उसका भी अच्छा सा रेस्टोरेंट नहीं है. मैं बहुत बार ढूंढता हूँ, मुझे जैसे कई बार संध्या खाना होता है, आइदर दीज आर अवेलेबल एट 5-star hotels or or at a very basic restaurant, but not at a very good location, at a reasonable price. अवेलेबल नहीं है, और हम लोग बेंगलोर में बैठे हैं. तो लोगों के पास बहुत फ्यूजन फूड्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड्स हैं. आपके पास सारे इंटरनेशनल फूड्स अवेलेबल हो जाएंगे. सुशी चल रहा है, कोरियन चल रहा है, बबल टी चल रहा है, सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा. लेकिन अगर किसी को सिंपल साउथ इंडियन मील भी खाना हो तो बेंगलोर में मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए मार्केट में गैप था. मैंने कहा यार ये करना चाहिए, और वो उसका डिमांड था तो वो शुरू में चला. Okay, so understood. So tell me, what was your like? You told me you started after 6 years of IT, right? Why do you think there's a major people who enter the food industry is from the IT background? I don't know, probably. क्योंकि अभी ऐसा हो गया है ना, like you work for 4 years or 6 years, you have a tea shop. मुझे टी शॉप में करना है, बस मुझे ये काम नहीं करना है. See, देखिए, मेरा फूड इंडस्ट्री का जो मतलब जो इंटरेस्ट था, वो जैसे मैंने बताया कि इंजीनियरिंग के टाइम से मैं कहीं ना कहीं तो ये सोच रहा था कि मुझे कुछ करना है, मुझे खुद का कुछ करना है. तो बेंगलोर के पहले भी, जैसे मैंने बोला, हमने मुंबई में किया, और उसके पहले भी इंदौर में किया. इंदौर में भी मैं काफी सारे छोटे छोटे बिजनेस कर रहा था. लाइक मैंने पीजी का बिजनेस किया, मैंने कोचिंग खोली, छोटी सी कोचिंग, लाइक कंप्यूटर एजुकेशन, स्पोकन इंग्लिश. मतलब कैसे भी करके पैसा बनाना है. मैं इंश्योरेंस एडवाइजर बन गया. मतलब जॉब छोड़ के सब करना है. जॉब छोड़ के अब सारा कुछ इस तरह का कुछ करना है. उसी में ये भी फिट हो रहा था.
कि यार टिफिन सर्विस कर ले, इसमें भी बड़ा पैसा है। करेक्ट। तो ऐसे करके धीरे से ये सब ट्रायल एंड एरर करके किए, फिर जॉब करने लगे, समझ में नहीं आया, पैसा खत्म हो गया, फिर जॉब करने लगे, फिर मुंबई चले गए, जॉब के चक्कर में मुंबई चले गए, फिर मुंबई में फिर दिमाग आया यार टिफिन सर्विस चालू करते हैं। मुंबई में टिफिन सर्विस चालू करना बहुत ईजी है, बिकॉज वहाँ पे लॉजिस्टिक सेट है। करेक्ट। तो अगर आप घर पे 10 डब्बा 20 डब्बा मॉर्निंग में बना लेते हैं तो वो आपका डब्बा वाला आएगा और वो आपका लेके जाएगा। डिमांड तो इनफाइनाइट है, तो डिमांड का तो इशू नहीं है। आप कितना सप्लाई कर पाते हैं, हाँ, आप क्योंकि पांडुराम 9 बजे आएगा डब्बा पिक करने, तब तक आप कितना बना लेते हैं। हम लोग मीरा रोड पे रहते थे, तो मीरा रोड पे आपको अगर मुंबई का कहानी पता हो तो मुंबई वेस्टर्न लाइन जो होती है, तो वो मतलब विरार से लेके चर्च गेट तक जाती है। तो अगर हम मीरा रोड पे रहते हैं विच इज बियॉन्ड बोरीवली, तो पांडुराम बहुत जल्दी आ जाता है मॉर्निंग, सुबह 9 बजे आ जाता है। करेक्ट है ना। अगर आप अंधेरी में रहते तो फिर भी वो पिक करने लेट आएगा। हम काफी पीछे रहते थे। है ना। तो वहां पे वो 9 बजे तक आप जितना डब्बा बना दे, हम 50-60 डब्बा घर पे बना लेते थे और वो उसको पकड़ा देते थे। डिमांड तो इनफाइनाइट है, बट आप कितना बना पाते हैं। तो वहां पे हमने टिफिन वहां भी ट्राई किया, और वो 1-2 साल चला। उसके बाद फिर मैं MBA करने आ गया, बैंगलोर आ गया, फिर हमने बंद कर दिया, फिर जॉब किया। फिर जॉब करने के बाद 1-1.5 साल के बाद, करीबन 1.5 साल के बाद, जॉब में उतना मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि दिमाग में कहीं ना कहीं वो बिजनेस करना है वाला घुसा हुआ था। 2-3 बार कर चुके थे, तो जॉब में आपको मजा नहीं आता। कई बार हो सकता है ये रीजन हो कि शायद आप अगर आपका जॉब आप उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो आपको लगता है कि मेरा खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने रिस्क नहीं लिया, जॉब चल रहा था और मैंने स्टार्ट किया। करीबन 3 महीने मैंने ओवरलैप में जॉब किया। मतलब जॉब भी चल रहा था और मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट, जैसे मैंने बताया कि 4 टेबल रखे। Because you anyways need the money for the running, right? For the operations and everything. It was very small investment. We have done some 5 lakh का investment to start with. 3 लाख अपना डाला, 2 लाख का क्योंकि जॉब था तो पर्सनल लोन मिल गया। तो जॉब का ये भी बेनिफिट होता है। 5 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 4 टेबल रख के हमने छोटा सा शुरू किया। 3 महीना कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर लगा कि नहीं, स्टाफ का बहुत इशू है, स्टाफ का बहुत मेजर। So that was the next question. क्या प्रॉब्लम्स फेस किया आपने? स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से सबके साथ ये प्रॉब्लम जाता है। स्टाफ का बहुत बड़ा इशू है। आप पहले तो जब स्टार्ट करते हो शुरू में सोचते ही नहीं हो कि स्टाफ भी आपको ऐड करना है। कई बार, और ये मैंने काफी ट्रेंड देखा है, काफी रेस्टोरेंट ऑनर जब वो स्टार्ट करते हैं तो मैं उनकी जर्नी देखता हूँ, और लगभग सबकी अब सेम हो चुकी जो मेरी थी, कि हम लोग रेस्टोरेंट बना लेते हैं, टेबल ले आते हैं, हम लोग किचन इक्विपमेंट ले आते हैं, सब ले आते हैं, और हमें भूल जाते हैं कि स्टाफ भी हमको आया। ये हम जब आखिरी वीक आ जाता है हमका स्टार्टिंग का, देन वी स्टार्ट फाइंडिंग यार स्टाफ कहाँ है। और स्टाफ कई बार हम अफोर्ड नहीं कर पाते। जिस स्टेज पे हम होते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, हम लोग का सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हम लोग बिजनेसमैन की तरह नहीं सोच सकते कि यार अभी हम इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ टाइम लॉस में जाएगा, फिर हम बेनिफिट देखेंगे। हमको तो शुरू दिन से प्रॉफिट चाहिए होता है, बिकॉज हम जॉब छोड़ के अगर आ रहे हैं कहीं पे हम लोग, तो हमको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, बिकॉज एंटरप्रेन्योर की जो ये सोच है ये काफी बेटर भी है, बिकॉज वो लोग स्टार्टिंग से यूनिट इकोनॉमिक्स पे ध्यान देते हैं। उनको प्रॉफिट चाहिए। अगर वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता। करेक्ट। तो ये एक तरह से अच्छा भी है, बट शुरू में डेफिनेटली मुश्किल होता है कि आपको शेफ मिलते हैं, वो बहुत बहुत कॉस्टली होते हैं, और आप सोचते हैं अरे इतना तो मैं इसको दे दूंगा, इतना तो मेरा बिजनेस ही नहीं हो रहा। तो आप फिर किसी पे सेटल हो जाते हैं। कई बार आपके लिए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज होता है, जैसे हमारे केस में हुआ था। हमको फिर एक शेफ मिला है जो एक्चुअली शेफ था ही नहीं, जिसने कभी रेस्टोरेंट में काम ही नहीं किया था। वो घरों का खाना बनाता था। अच्छा। हमारा तो कॉन्सेप्ट ही होममेड फूड का। तो वो उड़ीसा का एक बंदा था जो लोगों के घरों में जाके खाना बनाता था। तो मुझे OLX या ऐसी जो ऑनलाइन कहीं पे सर्च किया था मैंने, तो वहां पे वो मुझे मिल गया। तो और वो आज भी हमारे साथ काम करता है। वो शेफ जो 11 साल पहले हमारे पास आए थे, एक बंदा हायर किया था हमने, फर्स्ट एम्प्लॉय, वो ही इज वर्किंग विद अस नाउ। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हुआ कि मुझे रेस्टोरेंट का कोई शेफ नहीं मिला। एक तरह से अच्छा हुआ, बिकॉज मेरी क्विजीन भी होमली फूड की ही है। अगर कोई रेस्टोरेंट से आया हुआ शेफ होता तो वो उसको भी रेस्टोरेंट बना देता। that is true. तो हमको शुरू से ही फिर हमने उसी टाइप के शेफ हायर करना शुरू किए, जो एक्चुअली रेस्टोरेंट ट्रेंड शेफ नहीं है। जो लोगों के घरों में काम करते हैं। बिकॉज आप एक बंदे को ढूंढते हो, फिर वो 4 बंदों को लेके आ जाता है, और इस तरह से आपको फिर स्टाफ मिलना शुरू हो जाता है। बट डेफिनेटली शुरुआत में बहुत डिफिकल्टी होती है। स्टाफ इज अ मेजर प्रॉब्लम। आपको खुद ही सब काम करना होता है, और देन आई लेफ्ट द जॉब कि भाई ये डिफिकल्ट होने वाला है। नाउ आई हैव टू वर्क फुल टाइम। कहीं ना कहीं इथिक्स का भी प्रॉब्लम होता था, बिकॉज यू आर वर्किंग पैरेलल
फुल टाइम एट 2 जॉब. correct. So हमारा डिस्कशन हुआ ऑफिस में भी कि या तो ये कर लो या ये कर लो. तो हमने कहा एट दैट टाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाज वेरी बिग. आई वाज एट अ वेरी सीनियर पोजीशन. डेफिनेटली वो सैलरी को तो हम साल 2 साल तक नहीं कवर कर पाए, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, फ्यूचर दिख रहा है, कुछ करेंगे. ब्रेक इवन पे थे हम लोग वो टाइम पे, Okay. और मैंने जॉब छोड़ा 3 महीने के अंदर. So, like we were talking about the difficulties, right? So, what do you think for a beginner? What is the documents that is required to start off? Because we're talking about the opening. For starting, 2 documents are important. One is labor license and Okay. another is food ka Food, FSSAI. okay. These are compulsory. Mhm. You can't even start, even if you do not have a single labor, even if you are working, then also you need a labor Okay, license. got it. So you will write at least one labor because you are also labor. Labor, So, okay. and Got you it. require labor license. Okay. That is known as shop and commercial establishment license in Bangalore. Okay. It is known by different name in different areas. Areas. Another is FSSAI, Hmm. the food license. Food license also there are 2 categories. One is registration Mhm. and one is license. Okay. One is state license and one is national license. Mm. So if your annual turnover is less than 12 lakh rupees, you can go with registration. Registration is very simple. I think it's hardly Online. cost you 100-200 rupees, and you will get a registration online. It's very easy. But if you think that your turnover is going to, more than 1 lakh rupees a month, 12 lakh is nothing but 1 lakh rupees a month. So go for a state license. These 2 are important. These 2 are mandatory. Mandatory. Third one is GST registration. Mm. That will kick off after your Is turnover is beyond 20 lakh rupees a year. Okay. Then you Okay. need a GST. But Registration. if you are thinking that you are anyways going to cross 20 lakh rupees, it's better to Start take it off from with the GST. start. Okay. The fourth one is if you are doing a business in residential area, and most of us are doing it in residential area, then BBMP trade license Okay. is also BBMP. important. So in Bangalore, they call it BBMP trade license. In other areas, they might call it health license or trade license or Gumasta, Gumasta, or yeah. there are different names, but that you take from your local municipal corporation. Corporation. The health inspector will give you this license. Okay. So basically 4 licenses for Bangalore: BBMP trade license, labor license, food license, and GST if your turnover is more than 20 lakh rupees. When do you think we should start applying for these? How long do you think it's going to take? See, ideally, when you are preparing for the infrastructure, at that time only, you should Start. apply. Okay. Ideally, Got you it. should apply. Got it. And my suggestion, you should hire a consultant. BBMP, you can directly go. Yeah. BBMP, you should actually directly go and have a word with the BBMP health inspector, because he's an important guy. Because later also he will be important for you. So having a personal relationship is important, because for garbage collection and for other thing also, having a connection with BBMP is important. Correct. FSSAI and labor license, I suggest you can directly give it to some consultant. He will Okay. charge you 10,000, 15,000. So these rupees. consultants that you're talking about, is it only for these licenses? Only for the documents. Only for the documents. Okay. And only for 2 documents: Okay. labor and FSSAI. Got it. Because these are cheaply available. Yeah, correct. BBMP, I am saying you directly go to the office, and GST is very easy. GST you can go online and you will get it next day. Okay. GST is very easy. So for GST, don't go to consultant. It's free and it's very easy. Unless you do not have documents, like sometimes it's difficult when you do not have proper document of the property. The lease agreement is in someone else's name. And the property is in someone else's name. Then it might be difficult, and then you probably want to hire a consultant to overcome the difficulties. Yeah. Okay. But otherwise, GST is very, very easy. So do you advise on going to these private consultants for opening a restaurant or anything for that matter? Seriously do not know about restaurant industry. The answer is actually the consultant will help you. But then if consultant know more than you, it depends upon what the consultant's honesty also. Exactly, you never know. So I have seen consultant who will make money out of you. They have tie-up with suppliers. They have tie-up with kitchen equipment suppliers. They have tie-up with all the construction contractors. So they will probably make a lot of money from you. But it will become the whole process very easy. It seriously depends. If you can do it, you have the time, you have the resources, I suggest you go with yourself. Okay, so you suggest saying that you do the stuff by yourself. For first restaurant, at least you should do yourself. Okay. For second, you know. Now you know. Then you know. Yeah. So now you know. It's actually outsourcing your job. Yes. For second restaurant, you can hire a consultant, because
you are outsourcing the job. Understood. Your time has a value. You know, now I do not even go for BBMP trade license or even for GST because now I want to outsource it. Correct. And I do not want to go to a government official छोटा काम every अपने year. करना, yeah. No, going to a government official every year is not peaceful, you know. Correct. I know. The whole experience is not Not good. good. So you want to give some extra 4,000 rupees to a consultant. So it depends. Correct. When I registered, I went for food license also Everything. myself, for labor license also myself, because at that time every rupees is important. Important. I suggest if you are starting first time, you do it yourself. I'm sure you will do all kind of mistakes, but that is your learning. That is your learning. Most of the restaurant owners do not know what are the challenges because someone else has made a restaurant for them. And they are just running it. You will not enjoy it. Correct. You will not enjoy it. You will get bored, like you get bored in your IT job. Correct. So only when you do it by yourself, you'll get to know the difficulties. Second good thing is you will bring your own personality to the location when you are doing it yourself. Absolutely. Correct. And that is very important. See, restaurant will run because of some story, not just because of the food. So if people can relate with your story, you know, your loyal customer will increase. Yes. They should grow with you. Exactly. They should grow with your story. Yeah. They can relate more if you have a story rather than just a brand being opened. See, if I invest 50 lakh rupees and I open a very, fancy restaurant, people will not come. Doesn't matter. Unless you spend another 50 lakh on Instagram or something. Marketing. If you start small and people can see you, if they can relate with your story, if they have ambition, अरे इसने रेस्टोरेंट खोला, ऐसा रेस्टोरेंट मैं भी एक दिन खोलूंगा, वो उधर आएगा, खाना खाएगा, वो देखेगा, वो आपको ग्रो करते हुए देखेगा. From a small restaurant to a bigger one and a bigger one. What are the difficulties behind the story? कभी क्लोज हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, कभी फिर चालू करता है, ये परेशानी में है. वो सारी स्टोरी को देखता है, वो रिलेट करता है. That is important. Yes, थोड़ा सा, बट मैं बोलूंगा कि कंसल्टेंट मत लो, बट एक ग्रुप में जरूर रहो. So you should have friends from restaurant industry. Absolutely. Now it's very easy. हमारे टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था. 11 years back हम लोग का ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था. अभी तो बहुत इजी है. So I advise that you talk with restaurant owners before you start. And believe me, there is no competition. There is no competition. When I thought, when I started the restaurant, a lot of people advised me to go and talk to the restaurant owners. But I was in this concept of saying, ऐसे कैसे बात करेंगे? क्योंकि उनका competition होगा. If I don't know if they will help us or not. I was always in that fear of saying, maybe ये बात नहीं करेंगे. Even if I go and ask, they'll be like, नहीं है, मुझे नहीं बात करना है types. It's actually very reverse. Yeah, seriously, I got to know that very recently after I joined the restaurant. I do not know about other industry, but at least in restaurant industry, everyone wants to help everyone else. That's and so second important is there is no competition. My brand is entirely different. Your brand is entirely different. There is zero competition. And the market is so big that even if 10 restaurants will come and serve the same cuisine, still no competition nahi hota hai. There is no competition. Your competition is with yourself. So, and at least people are not seeing each other as a competitor. We are collaborators. Help each other. We are helping each other, because the problem is, if you start yourself, you do not know, you will most of the problem. I will tell you what the problem most of the guys are facing. They are buying new equipment, very costly. They are investing very heavily on infrastructure. Correct. From the very first restaurant itself, there is no need. A second-hand restaurant is available at 5 lakh rupees in total, including restaurant, furniture, everything. If you make the same kind of restaurant, you have to invest at least 50-60 lakh rupees. So at simple 90% discount. And since you are starting, you are just trying. You do not want to, go full with that. So I suggest you have friendship with the restaurant owner. It will definitely help. Because आपको स्टार्टिंग में पता ही नहीं होगा who is the supplier, सामान किधर से लेके आना है. You will buy from local vendor. ठीक है, स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता. बिकॉज जब हमने भी स्टार्ट किया था तो हमने लोकल वेंडर से ही स्टार्ट किया. बिकॉज आपको सामान लेना कितना है, आपको अभी 2 किलो आटा लेना है तो वो तो आप लोकल वेंडर से भी ले सकते. जब आपको 200 kg आटा लेना होगा, देन यू नीड ए सप्लायर, क्योंकि देन आपको प्राइस डिफरेंस पे फर्क पड़ेगा. बिकॉज स्टार्टिंग में बिकॉज यू आर डूइंग एवरीथिंग, तो शुरू से सारा कुछ करने का जरूरत भी नहीं है. आप लोकल वेंडर से ले सकते हैं. बट फिर भी अगर आपके फ्रेंड सर्कल में रेस्टोरेंट वाले हैं, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल.
because then you know क्या करना है. So my next question to that is, how do you get to know that there's this restaurant for sale? Is there a platform or is it word of mouth that people get to know? Yeah, about? there is a group, at least in Bangalore, there is a group, Restaurant Owners WhatsApp group is there. Facebook पे भी group है, Secret Sauce group है, and this must be there in every city. There must be group. So join those groups. They will approve your request if you say we want to open a restaurant. They will approve your request to join them. And people are selling their restaurant or their second-hand equipments. They will help you about everything. Like, for a beginner, I think they do not know from where to get the trade license. अभी क्या करना, मेरा BBMP का एरिया किधर है, तो एटलीस्ट उसको किसी भी रेस्टोरेंट वाले के पास जाएगा तो बता देगा कि आपको आपका जो एरिया है वो यहाँ पे BBMP का आपको हेल्थ इंस्पेक्टर मिल जाएगा, उसका नाम भी बता देगा, उसका फोन नंबर भी दे देगा. देन इट विल बिकम वेरी इजी. अदरवाइज आपको बिल्कुल जीरो से आप सर्च करेंगे तो, और ऑनलाइन कई बार चीजें अवेलेबल नहीं होती है. ऑनलाइन इज वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली नोइंग अबाउट अ डॉक्यूमेंट एंड ऑल इज वेरी डिफिकल्ट. तो इट्स बेटर इफ यू गो थ्रू सम रेस्टोरेंट फ्रेंड, वो बहुत इजी हो जाएगा. आजकल व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट ऑनर्स help करते हैं to buy these. Okay, coming to the next question, like you told me your staffing was a big problem. If you hired a staff, what is the key traits you're looking to? स्टार्टिंग में तो मतलब बाय चांस हो गया, बट नाउ वी आर वेरी क्लियर दैट वी डू नॉट वांट टू हायर someone who has actually worked at a restaurant, because my cuisine is very different. I serve homemade food, simple food. जब कोई बंदा एक प्रॉपर रेस्टोरेंट में काम कर लेता है तो सबसे बड़ा इशू मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट के साथ ये है कि उन लोग यहाँ डीप फ्रीजर होता है. एक बार आपको डीप फ्रीजर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो शेफ बिना डीप फ्रीजर के काम ही नहीं करता. और एंड एटलीस्ट वी डू नॉट लाइक डीप फ्रीजर, वी डू नॉट हैव डीप फ्रीजर एट ऑल. सेकंड, आपको अगर होमली टेस्ट लेके आना है तो आप रेस्टोरेंट के बंदे को लेके आएंगे तो वो रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट ही बनाएगा, वो होमली टेस्ट नहीं बनाता है. दूसरा, मेरे को एक और चीज होती है जो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती है, मेरे को एक ही चीज का फिक्स रेसिपी नहीं चाहिए. कई बार रेस्टोरेंट में मेनू को इतना स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है कि आप अगर जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जो काफी बड़ा नामी ग्रामी रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पे अगर आप दाल मखनी खाते हैं तो आप 1 साल के बाद भी खाएंगे, 10 साल के बाद भी खाएंगे, वो दाल मखनी वैसी ही लगेगी, है ना, सेम लगेगी. मैं चाहता हूँ कि अच्छी लगे, सेम लगना जरूरी नहीं है. वो आप जब उसके बात करोगे और अगर वो बता रहा है कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे सब आता है, मैं भगवान हूँ, तो मैं उसको बोल देता हूँ अगर तुम भगवान हो तो उधर ही काम करो जिधर काम कर रहे हो. बट इट इज रेडी टू लर्न. अगर वो ये बोल रहा है कि मुझे कुछ आता है बाकी मैं शेफ से सीख लूंगा, तो वो हमारे काम का, तो हम उसको ट्रेन कर सकते हैं. हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस शेफ को हायर नहीं करते, हम लोग फ्रेशर्स को हायर करते हैं और उनको अपस्केल करके ट्रेन करने में विश्वास करते हैं. हाउ डू यू मेक योर स्टाफ स्टे? आपने बोला कि आपका शेफ जो है 11 साल से है आपके हमारे पास 11 साल से फर्स्ट शेफ. हाउ डिड ही स्टे फॉर सो लॉन्ग? हमारे काफी सारे जो स्टाफ है वो बहुत पुराने, हमारे यहाँ छोड़ के बहुत कम जाते हैं. हम भी नहीं निकालते हम भी पाइवट कर देते हैं. कई बार वो किसी पर्टिकुलर रोल के लिए फिट नहीं होता था, हम उसको पाइवट कर देते हैं. कई बार ऐसा हुआ है कि एक बंदा जो पैकिंग में था हमने उसको शेफ बना दिया, कोई शेफ था उसको हमने पैकिंग में ले आए, कोई सर्विंग करने लगा. मल्टीटास्किंग भी करते हैं हमारे यहाँ पे, शुरू से मल्टीटास्किंग करते हैं. तो हमारे यहाँ पे ऐसा बहुत फिक्स रोल नहीं होता कि ये बंदा यही करेगा. हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम बिजनेसमैन नहीं है, तो हमको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहिए होता है. तो वो बंदा सुबह प्याज काटेगा, बाद में वो सब्जी बनाएगा, बाद में वो सब्जी सर्व करेगा, वो पैक करेगा. मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कटिंग ही करूंगा तो कटिंग करूंगा, क्योंकि आपके दिन में अलग अलग काम होते हैं, तो वो दिन में अलग अलग काम करेगा. मैंने देखा कई सारे रेस्टोरेंट होते हैं जो बहुत ही सेग्रीगेटेड होते हैं. वहाँ पे एक बंदा जो सिर्फ बेवरेज ही बना रहा होता है, वो बेवरेज काउंटर पे बैठा होता है. एक बंदा होता है जो सिर्फ पाव भाजी के काउंटर पे खड़ा होता है, वो भले उसका ऑर्डर हो या नहीं, वो उधर ही खड़ा होता है. एक बंदा होता है जो सिर्फ सप्लाईज ले रहा होता है, सप्लाईज अगर दिन में एक बार आती है तो बस एक बार सप्लाईज लेके बैठा होता है. हम लोग ऐसा नहीं करते. हमारे यहाँ सारा स्टाफ कॉमन होता है. जब जिसके पास जो टाइम होता है वो आता है. हमारे यहाँ सारे शेफ्स को पैकिंग आती है और हमारे यहाँ सारे पैकिंग स्टाफ को थोड़ी बहुत कुकिंग आती है. आपने पूछा कि कैसे रिटेन करते हैं. मेरे ख्याल से रिटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि उनको एक तो हम लोग डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया सैलरी होता है. तो जो नॉर्मल एवरेज है उसे थोड़ा सा हम ज्यादा देते हैं. सैलरी सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेफिनेटली. उसके बाद रिस्पेक्ट होती है कि अगर आप उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो वो नहीं छोड़ के जाएंगे. So the next question is, how do you maintain the food consistency and quality? That is the related question to SOPs. Actually SOPs तो नहीं रखते हैं हम लोग. मतलब we do not have written SOP. If your ingredients are same, if you are sourcing from the same vendor,
for a long time. And if your staff is also the same, these are two very important things for maintaining the consistency. We are a single outlet restaurant. Okay. We are not a multi-brand outlet or a multi-location outlet. Okay. And we work ourselves. Okay. It's a family business. We work ourselves. We work full time. Okay. Our staff is very old. They are here from starting. So we do not have written down SOPs, but we have some rules that our staff know. जैसे हमने पहले भी बोला कि हमारा एक स्पाइस लेवल है, वो पता है सबको. तो नया बंदा जब कोई हम हायर करते हैं तो उसको बताया जाता है कि ये लेवल है. जैसे हम लोग का फूड लो ऑयल है, लो स्पाइस, लो ऑयल, वो सब बताया जाता है. तो हम लोग वर्ड बाय वर्ड उसको कम्युनिकेट करते हैं, बट हाँ रिटर्न डाउन SOPs नहीं है. और जैसे आपका जो क्वेश्चन था कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करें, तो मेंटेन करने के लिए एक तो हम लोग सारा मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि हम लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करें, बिकॉज उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर हो जाती है ना. अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल अगर मैं पनीर यूज करता हूँ तो हम लोग मिल्की मिस्ट पनीर यूज करते हैं, कोई लोकल पनीर यूज नहीं करते, क्योंकि लोकल पनीर हो सकता है वो मिल्की मिस्ट से भी बेटर हो, बट प्रॉब्लम ये कि उसकी अवेलेबिलिटी में कितने टाइम तक इंश्योर कर पाऊंगा. वो वेंडर ही बंद हो गया. एटलीस्ट मैं जो दे रहा हूँ उसका मुझे पता है कि वो कंसिस्टेंटली मुझे आज भी मिलेगा, 5 इयर्स के बाद भी मिलेगा, 10 इयर्स के बाद भी मिलेगा. तो हम भी कई बार ट्राई करके देखते हैं दूसरा इंग्रेडिएंट, पर हमको लगता है कि नहीं ये सूट नहीं कर रहा है और इसकी अवेलेबिलिटी में मेंटेन नहीं कर पाऊँ, तो हम लोग सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करते हैं. हमारा स्टाफ पुराना है, उससे हम कंसिस्टेंसी यूज करते हैं. काफी सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे लोकल एरिया से सोर्स करते हैं. तो आज भी हमारी जो लाल मिर्ची हम यूज करते हैं वो इंदौर से आती है. तो वो निमाड़ एरिया में मिर्ची काफी होती है. तो हम लोग मिर्ची खरीदते हैं, रेड चिलीज खरीदते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, पैक करते हैं और यहाँ पे फिर इंपोर्ट करते हैं. धनिया हम लोग वहीं से लेके आते हैं. तो हम लोग खड़ा धनिया खरीदते हैं, उसको पिसवाते हैं, पैक करते हैं और यहाँ मंगवाते हैं. आज भी हमारा जो गरम मसाला वो इंदौर से आता है. इंदौर का एक बहुत ही फेमस ब्रांड है वहाँ पर. आज भी हम गरम मसाला वहीं से लेके आते. हम लोग पहले तो जब तक हम मुंबई में थे हम लोग का आटा भी इंदौर से आता था. आपने सुना होगा MP शरबती आटा काफी फेमस होता है. MP आशीर्वाद भी यही लिखता है. तो हम अब चूंकि हमारा स्केल काफी बढ़ चुका है तो हम वहां से तो नहीं मंगवा सकते, बट हम आशीर्वाद पे शिफ्ट हो गए. सो हम लोग अब आशीर्वाद आटा यूज करते हैं. फॉर इयर्स वी आर यूजिंग द सेम ब्रांड. सो वी यूज आशीर्वाद आटा, सफोला ऑयल, फॉर्चून ऑयल, मिल्की मिस्ट पनीर, गुड लाइफ मिल्क, नंदिनी घी, अमूल घी, सब ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करते हैं. तो अगर आपका इंग्रेडिएंट ब्रांडेड है, क्वालिटी जिसकी कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन कर रखी है, और अगर आपका स्टाफ भी सेम है तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें. डेफिनेटली मैं समझ रहा हूँ कि चैलेंजेस होंगे जब अगर आप मल्टी आउटलेट जाएंगे, तब डेफिनेटली चैलेंजेस होंगे, तब आपको शायद SOPs बनानी पड़ेगी. But so the next question was that why one single outlet? We tried expanding. For Corona, we were growing very rapidly, and हमारा जो कैपेसिटी था वो कम पड़ने लगा था. We have taken one outlet, a very big outlet. We were like, अब तो हम लोग एकदम बड़ा रेस्टोरेंट खोलते हैं, because now we have seen everything. 200-seater रेस्टोरेंट का डिजाइन किया, बट हमारा लोकेशन बिल्कुल गलत हो गया. The rent was low. It was on main road, on also main road, but लोकेशन गलत हो गया. वहाँ पे पार्किंग नहीं था और डाइनिंग बिल्कुल जीरो था. द एम्बियंस वाज गुड, डाइनिंग बिल्कुल जीरो था. हमने उसको फिर डिलीवरी आउटलेट में कन्वर्ट किया. वी शिफ्टेड ऑल ओवर डिलीवरीज टू दैट लोकेशन एंड वी हैव रन इट फॉर 1 year, 1.5 year. और उसके बाद फिर कोरोना आ गया. कोरोना आने के बाद हमको, बिकॉज बोथ द आउटलेट वर इन सेम लोकेशन, वी हैव टू क्लोज वन. वी थॉट उधर डाइनिंग नहीं है तो हम उसको क्लोज कर देते हैं, एटलीस्ट इधर डाइनिंग और डिलीवरी दोनों चल सकता है. तो हमने सारा डिलीवरी फिर इधर शिफ्ट किया जो हमारा लोकेशन था HSR लेआउट में, और एक लोकेशन हमने क्लोज किया. फिर कोरोना के टाइम से जो हमने डाइनिंग क्लोज किया तो हमने डिलीवरी पे काफी फोकस किया. डिलीवरी को हमने इतना बढ़ा दिया कि हमारा जो पूरा कैपेसिटी था वो सिर्फ डिलीवरी में ही निकलने लगा. हमने लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी 2023 तक, लास्ट ईयर सितंबर तक हमने डाइनिंग ओपन नहीं किया, बिकॉज हम लोग का कैपेसिटी पूरा यूज हो रहा था डिलीवरी. लास्ट ईयर फिर हमने डाइनिंग वापस ओपन किया, डिलीवरी के लिए एक बड़ा क्लाउड किचन लिया. तो अभी हमारा सिचुएशन ये है कि हम लोग अपना पूरा डिलीवरी हमारे एक क्लाउड किचन में शिफ्ट कर चुके हैं. HSR में ही है, लेकिन एक प्रोफेशनल किचन है. 2500 स्क्वायर फीट का प्रोफेशनल किचन है. हमारा 11 years का जो भी लर्निंग था वो हमने उसमें लगा दिया. आप उसका पूरा जो लेआउट देखेंगे, पूरा जो सिस्टम देखेंगे, वो अब प्रॉपर है. मतलब जो हमारा पूरा 11 years का लर्निंग था कि एक
layout is very important for Hmm. efficiency, for hygiene, everything is very important. Your kitchen should be professional because एक आपको process hygiene होना maintain चाहिए। करना है, safety maintain करना है, तो ये सब चीजें बहुत important है. Not about food safety, but safety of the employees also. और मेरा एडवाइस भी है बहुत लोग बहुत छोटे छोटे क्लाउड किचन बनाए. मैं उनको बोलता हूँ इतना छोटा क्लाउड किचन मत बनाओ कि आपके स्टाफ की सेफ्टी के लिए वो बहुत बड़ा इशू बने. यू नीड ए बिगर. आपका क्विजीन मल्टी क्विजीन है, अगर आप बहुत बड़ा मेनू है आपका, तो आपको जगह भी बड़ी लगेगी. आपका छोटा मेनू है तो समझ में आए. तो हमने एक बड़ा सा किचन दिया है, फ्यूचरिस्टिक किचन है, 2500 स्क्वायर फीट है. अभी तो फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, बट हमको लग रहा है कि अगले हो जाएगा 3-4 साल में उसको पूरा यूज कर पाए. तो अभी फिर हमने जो हमारा HSR लेआउट का डाइनिंग आउटलेट था उसको लास्ट मंथ क्लोज कर. Now we are completely into Cloud. delivery. Why do you think the cloud kitchen concept works more right now than a dining? Definitely deliveries are increasing every year. It's a new market. It's a new market. 10 years पहले deliveries इतना नहीं था. Dining is always there. So it's a new market. So I'm not saying that dining कम होगा. I'm saying dining भी grow करेगा. But delivery is a new market. तो delivery जिस स्पीड से grow करेगा, शायद dining उस स्पीड से grow नहीं करेगा. Because it's a new market. पहले लोग बाहर का खाना खाने जाते थे तो बाहर ही जाते थे, बिकॉज इट्स इवेंट. अगर मैं बाहर का खाना खा रहा हूँ तो मैं उसको घर मंगा के खाने से मतलब क्या है? मेरे को अगर ताज का खाना खाना है तो मेरे को ताज में जाके खाना है, उसको घर मंगा के खाया तो क्या मतलब. लेकिन जब से हमारे पास एग्रीगेटर्स आ गए हैं तो अभी ये कन्वीनियंस भी बन चुका है. इट्स नॉट जस्ट गोइंग आउट एंड हैविंग आउटसाइड फूड, इट्स कन्वीनियंस ऑल्सो. तो लोगों को एवरीडे फूड, स्पेशली cities like Bangalore or Mumbai, both husband wife are working, you know, so they are now having at least one meal outside. So either they go out or they order in. तो डिलीवरी तो इंक्रीज होगी, डिलीवरी का मार्केट बहुत ग्रो करेगा. तो उसको देखते हुए, एंड डिलीवरी इज लिटिल इजी, so we have decided that let's focus on delivery. Dining is a little difficult business. In ideal situation you should have a combination of both, dining and delivery. If you are starting your brand, you definitely need dining, because डिलीवरी में आज की तारीख में कोई नया ब्रांड अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है. बिकॉज अगर नया ब्रांड है तो उसका जो कमीशन होगा वो अराउंड 20% के करीबन होगा, जो एग्रीगेटर्स क्लेम करेंगे. उसके बाद उस नए ब्रांड को विजिबिलिटी के लिए भी कुछ प्रमोशन या डिस्काउंट कुछ चलाना पड़ेगा, तो उसको कुछ 20-25% का डिस्काउंट उधर मारना पड़ेगा. अगर आपके टॉप लाइन से ही 40-50% कट जाएगा तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा. बट अगर कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड है जिसका ब्रांड ऑलरेडी ऑफलाइन से बन चुका है, जो पुराना ब्रांड है, जैसे हम लोग काफी पुराने हैं, हमारी टर्म्स थोड़ी पुरानी है एग्रीगेटर्स के साथ, और हम लोग डिस्काउंट अब हमको डिस्काउंट चलाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे ब्रांड की विजिबिलिटी ऑलरेडी है. वी हैव रिपीट यूजर्स, बिकॉज जो 8 ईयर से 10 ईयर से यूजर्स बने हैं हमारे, तो वो हमको ऑर्गेनिकली सर्च कर लेते हैं. और हम चूंकि पुराने ब्रांड भी हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं ऑर्गेनिकली भी सर्च इंजन में ऊपर आ जाते हैं, बिकॉज हमने टाइम दिया है. हमने डिस्काउंट तो नहीं दिया, बट टाइम दिया है. आप कैसे मार्केटिंग करते हो करके मैं पूछने वाली थी. मार्केटिंग का बजट हमारा 0 है. ओके. हम लोग, मुझे तो पता ही नहीं कि सीपीसी क्या होता है. तो जब मैं रेस्टोरेंट वालों के साथ बैठता हूँ, वो पूछते हैं कि आप सीपीसी चलाती हैं, आई एम लाइक सीपीसी होता क्या है? मुझे तो कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है. काफी एग्रीगेटर्स भी हमसे परेशान रहते हैं कि हम लोग कोई बिजनेस उनको नहीं देते, मार्केटिंग बिजनेस नहीं देते. हम लोग का मार्केटिंग के नाम पे एक फेसबुक पेज है जिसपे हम लोग हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली लिख देते हैं. कोई लोकेशन चेंज होता है तो हम लिख देते हैं कि अब हमारा लोकेशन यहाँ हो गया है. किसी दिन अगर कुछ स्पेशल होता है तो लिख देते हैं कि आज छुट्टी है या जो भी है. मतलब वो इन्फॉर्मेशन पेज है, उसमें मुश्किल से शायद 200-400 लोगों ने उसको फॉलो कर रखा होगा. तो मार्केटिंग के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है. लास्ट ईयर हमने एक इंस्टाग्राम पेज बनाने की भी कोशिश की और उसमें भी शायद 8-10 रील्स डाल दी होगी हमने. तो कोई फॉलोअर्स उसमें भी नहीं है, हमारा स्टाफ ही है शायद उसके फॉलोअर्स. तो मार्केटिंग नहीं करते हैं हम लोग. मेरे ख्याल से हम लोग का शुरू से ये बहुत फर्म बिलीव था कि अगर आप कोई अच्छी चीज लेके आ रहे हैं और आपके पास अगर इनिशियल सेट ऑफ कस्टमर्स बन गए हैं तो वो कस्टमर ही आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग कर. करेक्ट, ट्रू. शुरू के 100 लोगों को तो आपको ही लेके आना पड़ेगा. और वो शायद आप मार्केटिंग से तो नहीं ला पाएंगे, वो बहुत डिफिकल्ट होता है फॉर ए न्यू रेस्टोरेंट. तो उस टाइम पे हम लोग का भी ऑफलाइन ब्रांड था, तो हम लोग डाइनिंग कर रहे थे, तो विजिबिलिटी थी, लोगों ने देखा कि कोई एक नया आउटलेट खुला है, तो वो शुरू के 100 कस्टमर आ गए. हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो फिर डिसीजन था वो ये था कि इन 100 कस्टमर्स को पकड़ के रखना है, क्योंकि ये अगर रिटर्न कर लिया हमने तो ये 100 के 200 कर लेंगे और फिर 200 से 400 हो जाएगा.
वो तरीका हमने अपनाया, जिससे हमने मार्केटिंग पे बहुत कॉस्ट रिड्यूस किया। मार्केटिंग पे जब हम कॉस्ट रिड्यूस करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा ये मिलता है कि आप वो कॉस्ट को फूड में डाइवर्ट कर पाते हैं। और जब आप फूड में पूरा डाइवर्ट कर लेते हो तो कस्टमर को ये दिखता है। कस्टमर आज की तारीख में बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है, उसको ये समझ में आता है कि आपने फूड में कितना खर्चा किया है और मार्केटिंग में कितना खर्चा किया। आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोगों का आज भी जो डिलीवरी का पैक जाता है उसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं होती। उसके ऊपर कहीं भी ये लिखा नहीं होता है कि ये मुंबई टिफिन का खाना है, कोई ब्रांडिंग नहीं होती। उसके ऊपर सिर्फ एक केओटी लगी होती है स्विगी या जोमेटो की, उसके ऊपर मुंबई टिफिन लिखा होता है, बट हमारे यहाँ कोई ब्रांडिंग नहीं होती। हम जितना खर्चा बचा सकते हैं वो हम उतना बचाने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं चाहता कि फूड का खर्चा मैं पैकेजिंग में डालूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पैकेजिंग खराब यूज करता हूँ। वी यूज द बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग मटेरियल। हम लोग, आपको विश्वास नहीं होगा, जो हम लोग कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल पे शिफ्ट हो चुके हैं। और जो पेपर कंटेनर हम यूज करते हैं वो यूनिमार्क ब्रांड के करते हैं हम लोग, एशिया पेपर एंड पल्प से लेकर आते हैं। उसका जो पेपर होता है वो यूरोप से इंपोर्ट होता है। हमने उसका सर्टिफिकेशन देखा है कि इसका जो कोटिंग है वो फूड ग्रेड है, उसकी गारंटी है मुझे। मार्केट में पेपर कंटेनर 5 रुपीज में भी अवेलेबल है, हम लोग को 10 रुपए में पड़ता है। सो पैकेजिंग में हम खर्चा करते हैं while buying the packaging material, not on the branding, because मुझे पता है एटलीस्ट 1 रुपया तो लगेगा, राइट। और ये 1-1 रुपया करके अगर मैं 1000 डिलीवरी कर रहा हूँ रोज की तो मेरा 1000 रुपया लग जाएगा। क्यों ना इसको मैं फूड में डालूं या स्टाफ के लिए डालूं या मैं लोकेशन के सेफ्टी के लिए डालूं, मैं उस तरह से देख रहा था। That's a good idea actually. That's a good concept, saying that don't put too much in the branding. That doesn't put it on the food, it'll become a brand. It depends actually. See, it depends upon how fast you want to grow. I'm not saying that you should not invest anything on marketing. It also depends upon at what stage of life of your restaurant you are in. अगर आपने कोई नया रेस्टोरेंट ओपन किया है तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा। करेक्ट। तो उस बताने के लिए शायद आपको थोड़ी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने चीपेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढा था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद पेपर इंसर्ट। और मैं आज भी विश्वास करता हूँ पेपर इंसर्ट इज द मोस्ट इफेक्टिव लोकलाइज्ड मार्केटिंग, और वो काफी इम्पैक्टफुल है। हाँ, अभी लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि कितने लोग पेपर इंसर्ट देखते हैं, बट ये तो क्वेश्चन किसी भी चीज पे किया जा सकता है कि कितने लोग फेसबुक देखते हैं, बट एटलीस्ट जो देखेगा सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। मैंने देखा है कि पेपर इंसर्ट बहुत इम्पैक्टफुल होता है, स्पेशली लोग उसको ले लेके वापस आते हैं। मैंने देखा है कई सारे स्पेशली सीनियर लोग उस लिफलेट को लेके आते हैं, वो एड्रेस ढूंढते हुए आ जाते हैं कि कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, लेट्स ट्राई। रेस्टोरेंट के केस में बहुत सारी हॉस्पिटैलिटी के जितने भी बिजनेस हैं उनसे उन केसेस में लोग लिफलेट काफी यूज करते हैं और काफी इफेक्टिव है और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव। So the next question will be, what is your proudest moment in the entire industry, in the entire journey? When people know you as a successful brand, when they recognize you. अगर हम बात करेंगे, जोमेटो ने हमको 2018 में एक अवार्ड दिया था और उसका जो कैटेगरी था वो भी काफी अच्छा था। So with 5,000 restaurant owners sitting in a hall of this, or for all restaurant owners of the city, okay, they have given an award. Wow. The award was Best Customer Excellence Award. Oh, okay. The Zomato CEO told that it's an important award, unlike the other awards which are like Best North Indian, Best South Indian, Best Idli, Best Dosa. Your award is different because ये जो metrics आपने पकड़े हैं ये important है। Correct. वो अवार्ड था बेस्ट कस्टमर एक्सीलेंस अवार्ड। वो उसको मिलता है जिसका डिलीवरी मैट्रिक्स बेटर होता है, इन द सेंस कि आपका किचन प्रिपरेशन टाइम कम है, आपका रिजेक्शन रेशियो कम है, आपका एरर कम है, आपका टोटल डिलीवरी टाइम कम है, टोटल पैकेजिंग आपका बढ़िया है, और मतलब जो आप डिलीवरी में एक्सपीरियंस देते हैं कस्टमर को, उसके कारण वो आपको अवार्ड मिलता है। वो फूड रिलेटेड नहीं था, क्विजन रिलेटेड नहीं था, लोकेशन रिलेटेड नहीं था, एवरी एस्पेक्ट। उन्होंने ये भी बोला था कि जो आपको मार्क्स आए हैं वो नेशनल एवरेज से काफी ऊपर है, मतलब जो सेकंड बंदा है वो आपके बहुत पीछे है। आपको बताऊं, हमने आज तक अपने साइड से कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं किया, 0 कैंसिलेशन है हमारा, हम अपनी तरफ से कैंसिल नहीं करते कई, और ये रेशो बहुत ज्यादा है रेस्टोरेंट में। पीओसीज बताते हैं कि एवरेज भी शायद 2 ऑर्डर लोग रेस्टोरेंट रोज का कैंसिल कर देते, हमारा 0 है। हमने अपनी तरफ से कभी कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं किया। वो अगर डिलीवरी में कैंसिल हुआ है या कस्टमर ने कैंसिल किया है तो बात अलग, पर हमारी तरफ से हमने कैंसिल बटन दबाया ही नहीं। अगर हमारा रेस्टोरेंट ऑन है, अगर हमने ऑफ नहीं किया है, उसको विजिबिलिटी ऑफ नहीं की है, तो हमने अगर ऑर्डर लिया है तो वो जाएगा।
तो जिसको बोलते हैं कि रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए, और कस्टमर ये देखता है कि अगर अब वो खाना मंगा रहा है तो वो आएगा, जो मंगाया वही आएगा और एक गिवन टाइम में आएगा, तो उसका विश्वास हो सकता है। हाँ. और एग्रीगेटर्स को भी ये समझ में आता है, इसके बेनिफिट भी हैं। मैं रेस्टोरेंट वालों को ये एडवाइस भी देना चाहूँगा कि इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान दें, क्योंकि जब आपका कैंसलेशन बहुत ज़्यादा होता है और आपकी रिलायबिलिटी नहीं होती है, आपकी विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। एग्रीगेटर बहुत इस बात पे ध्यान देते हैं कि आपकी रिलायबिलिटी कितनी ज़्यादा है, वो आपकी विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, आपका रेडियस भी बढ़ाते हैं। रेडियस बढ़ने से आपको एक्स्ट्रा बिजनेस भी मिलता है। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपका जो इकोसिस्टम है वो भी आपको सपोर्ट करता है। So what is your customer base? हमारा से मोस्टली तो फैमिलीज ही हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स, बोथ हस्बैंड वाइफ वर्किंग फैमिलीज, बट काफी सारे साउथ इंडियन फैमिलीज भी मंगाते हैं। लोगों को लगता हो कि हमारा खाना नॉर्थ इंडियन है, बट ऐसा नहीं है। काफी हमारा बेस, स्पेशली हमने डाइनिंग में देखा था, डिलीवरी में बहुत डिफिकल्ट होता है, बट डाइनिंग में हम देखते थे कि काफी साउथ इंडियन फैमिलीज हमारे यहाँ, बट मोस्टली फैमिलीज हैं। स्टूडेंट क्राउड नहीं है। स्टूडेंट के शायद प्राइस पॉइंट से हल्का सा हम लोग स्ट्रेस्ड होते हैं, बट या वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड फैमिली। So how do you price your food? On what basis do you price your food? जनरली हम लोग का कॉस्ट प्लस होता है, होना नहीं चाहिए, बट जनरली हम लोग का कॉस्ट प्लस होता है। तो हम लोग देखें कि हमारा स्टार्टिंग हमने वैसे ही किया था कि हम लोगों ने देखा कि हमने स्टार्ट किया था एक ही मेनू आइटम से। तो एक थाली था, तो हमको लगा कि यार ये थाली कितने रुपए में बनेगी, तो हमको लगा कि ये 40-50 रुपए में बन जाएगी। हमने कहा इसको 80 रुपीज में सेल करना चाहिए। डबल। हमने थोड़ा सा बाकी रेस्टोरेंट में भी देखा कि क्या बेंचमार्क है, और एक बार प्राइस सेट कर दिया। एक बार सेट करने के बाद हम लोग कंपोनेंट वाइज चलते गए कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, अगर हम कंपोनेंट बढ़ा रहे हैं तो उसके प्राइस हम बढ़ाते गए, और उसके बाद तो फिर सिंपल हो गया, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता गया हम उसका प्राइस बढ़ाते गए। हमारा मेनू हमने हमेशा से थोड़ा सा स्ट्रेच्ड रखा है। जो प्राइसिंग है वो हल्की सी स्ट्रेच रखी है। मतलब अगर मुझे लगता है कि इसका एक्चुअल प्राइस 100 होना चाहिए, तो मैं उसको हल्का सा ऊपर कर देता हूँ, यानी मैं उसको 110 कर देता हूँ। मेरा ये मानना है, अगर कोई बंदा 100 दे सकता है तो वो 110 भी दे देगा, अगर आपका फूड अच्छा है। मतलब अगर मेरे को 2 जगह से चूज करना है, एक है गंदा खाना सस्ता और एक अच्छा खाना थोड़ा महंगा, कोई भी बंदा अच्छा खाना महंगा खा लेगा, रिपीट भी आ जाएगा, भले वो महीने में एक बार आएगा, वो रिपीट भी आ जाएगा। गंदा खाना सस्ता खाने तो वो रिपीट कभी नहीं आएगा। हमारा थोड़ा सा स्ट्रेस रखते हैं हम लोग, थोड़ा सा प्राइसिंग ज्यादा रखते हैं, उस क्विजीन के लिए तो ज्यादा है। अगर आप उसको बाकी क्विजीन से, मतलब एक सिंपल होममेड फूड है, हमारी थाली लगभग 250 रुपीज में मिल रही है, एक नॉर्मल थाली, तो शायद उस सेक्टर के लिए, उस सेगमेंट के लिए थोड़ा सा ज्यादा है। So where do you see yourself in 5 years, or where do you see Mumbai Tiffins in 5 years? जो काम हम कर रहे हैं उसको हम और सिस्टमेटिक करते जाएं। जैसे अगर हम आज 1000 ऑर्डर कर रहे हैं, तो मेरा ये नहीं मानना है कि मैं रोज का 2000 ऑर्डर करूं। मैं चाहता हूं कि 1000 ऑर्डर में जो हम एक एरर कर रहे हैं, वो एक एरर भी कम हो जाए, वो और कम हो जाए। हमें चाह रहे हैं कि हमारा स्टाफ जो आज काम कर रहा है वो और खुशी खुशी काम करे, उसको वो भी हमारे साथ ग्रो करे। हम मतलब चीजों में और सिस्टम आने लगे। अभी हम काफी रेंडमली काम कर रहे हैं, तो उसमें धीरे धीरे और सिस्टम आने लगे। ऑर्डर बढ़ाना हमारी या आउटलेट बढ़ाना हमारा टारगेट नहीं, पर हम जो कर रहे हैं उसको और अच्छे से करें, हमारा ये टारगेट। So where do you feel that your restaurant might fail? For any restaurant, I think one is every restaurant has a life. रेस्टोरेंट बहुत कम है जो 40 साल, 50 साल, 100 साल सर्वाइव कर जाते हैं। हर एक रेस्टोरेंट का एक टाइम होता है, उसके सक्सेस के लिए भी टाइमिंग उतनी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर वो सही टाइम पे ओपन हो गया था, उस समय उस चीज की डिमांड थी, तो वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। हमारे केस में भी ये हुआ था, कोरोना के पहले जब हमने स्टार्ट किया था, बट परफेक्ट लोकेशन पे स्टार्ट किया था, परफेक्ट टाइमिंग थी, हमको बहुत जबरदस्त कस्टमर बेस मिल गया था। उस समय HSR लेआउट में उस समय स्टार्टअप बूम था, सारे स्टार्टअप के फाउंडर, सारे एम्प्लॉयज हमारे यहाँ खाना खाने आते थे, उससे हमारा स्टार्ट भी हुआ था। और वही कारण आपके लिए टाइमिंग ही आपके क्लोज करने का भी कारण बन सकता है, बिकॉज हर एक रेस्टोरेंट की एक लाइफ होती है। थैंकफुली हमारे केस में क्विजिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बिकॉज हम लोग एवरीडे मील दे रहे हैं, तो शायद हमारी लाइफ थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि लोगों को रोज का खाना तो खाना ही होता है। बट जो कैफेज होते हैं, कैफेज की एक लाइफ होती है, जो हाई एंड रेस्टोरेंट होते हैं उनकी एक लाइफ होती है। कई बार 5 ईयर 6 ईयर्स के बाद रेस्टोरेंट फेड आउट हो जाते हैं, वो ट्रेंड चला जाता है। तो डेफिनेटली ट्रेंड एक ऐसी चीज हो सकती है जो हमारे लिए चैलेंज हो सकती है। धीरे धीरे लोगों का हमने देखा, और यही एक कारण है कि हमने डाइनिंग जो हमने क्लोज किया, उसका कारण भी ये कि एवरीडे मील के डाइनिंग कस्टमर धीरे धीरे कम होते हैं। तो अगर लोग बाहर जाके खाना खा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सिक्यूटिव या फैंसी फूड खाना पसंद कर रहे हैं। आजकल
इवन द लोकेशन शुड बी इंस्टाग्राम फ्रेंडली। Instagrammable. तो Yeah. ये चीजें इंपॉर्टेंट होती जाए। हाँ. फूड शुड बी इंस्टाग्राम फ्रेंडली। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे आप उसका फोटो खींचना चाहोगे, आप हाँ. लोगों को शेयर करना चाहोगे कि आप क्या खा रहे हैं। आप एक सिंपल थाली का फोटो खींच के नहीं डालोगे कि यार ये क्या खा रहे हैं, उसमें आपको बहुत प्रेस्टीज फील नहीं होगा। Correct. आप अपने फ्रेंड को लेके वहाँ पे नहीं जाओगे शायद। No, so how long do you think these gimmicks will work? The Instagrammable gimmicks. See, this will work or some other will replace it. Hmm. But it's a continuous innovation. Innovation. Restaurant has to constantly innovate. They have to change their menu, their ambience, even their name, their segment. They have to pivot. They have to pivot. Once you know the line is going down, you should change. You have to change. There are very few restaurants, and most of them are in. We know that if you see most of the restaurants who are 40, 50 years old are South Indian Darshanis in Bangalore, or otherwise 1 or 2 cafes that we know, Hole in the Wall, or 2, 3 names, Tuffles, or you know that there are very few cafes which are running for a long time, or otherwise the Darshanis, or the MTR, or the Brahmin Cafe, or the Vidyarthi Bhavan. But not many brands are there which are too old. So normal food है, simple food है, तो आपकी लाइफ ज़्यादा है। बट अगर आपका फैंसी फूड है तो आपकी लाइफ बहुत कम है। तो कैफेज को इनोवेट करते जाना पड़ता। तो हमारे केस में क्या हुआ है कि चूंकि लोग एवरीडे मील खाने के लिए बाहर आना कम पसंद कर रहे थे, बट घर पे वो मंगा लेते हैं। अभी हमने देखा कि हमारा डिलीवरी बिजनेस ग्रो कर रहा है, डाइनिंग बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो हमने डाइनिंग बिजनेस ग्रो किया और डिलीवरी बिजनेस ग्रो। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, व्हाट डू यू थिंक द चैलेंजेस or the failures in the restaurant industry? Why is the restaurant industry right now like a biggest failure? रेस्टोरेंट में सबसे बड़ा, तो जैसे हमने पिछला जो टॉपिक कवर किया उससे रिलेटेड ही है कि कंटिन्यूसली ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो अगर आप उसके साथ नहीं बने हुए हैं तो डेफिनेटली डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकंड इज, अगर आपका डाइनिंग आउटलेट है तो रेंटल इज ए वेरी बिग इशू नाउ। द रेंटल्स आर वेरी हाई। लोगों को प्राइम लोकेशन पे रेस्टोरेंट ओपन करना है क्योंकि कस्टमर वहीं आएंगे, लेकिन उसका रेंट इतना ज्यादा है कि आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। सेकंड, स्टाफ का सैलरी, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। आप स्टाफ को जो सैलरी दोगे, आप अच्छी लोकेशन पे है तो स्टाफ भी आपका बहुत दूर जाके तो नहीं रहेगा, उसका भी घर का खर्चा बहुत है। अब अगर आपने स्टाफ बेंगलोर में रखना है तो उसका भी तो लाइफ स्टाइल बेंगलोर वाला ही होगा, तो उसका सैलरी भी बहुत ज्यादा होगा। तो रेंटल्स बहुत ज्यादा है, स्टाफ बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। कुल मिला के हम लोग ने जब शुरू किया था तो हमारा फार्मूला बहुत सिंपल होता था कि हम लोग जो रेवेन्यू होता था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे। हम ये बोलते थे कि 1/3 हमारा जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट में। डायरेक्ट कॉस्ट जब मैं बोलता हूँ तो उसमें फूड, फ्यूल, ये सब आ जाएगा, सैलरी ऑफ द स्टाफ जो उस खाना को बनाने में लग रहा है। दूसरा हम लेते थे इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो उसमें हम लेते थे कि रेंट आ गया, है ना, और यूटिलिटीज आ गई, तो वो सब चीजें आ जाती। और तीसरा हमारा बचता था प्रॉफिट, तो हम बोलते थे कि 1/3 हमारा प्रॉफिट है। अभी ये हो गया है कि हमारा जो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगी बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा, उस प्रोपोर्शन में हम लोग प्राइस नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि अब मार्केट बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव हो चुका है। तो अगर आप प्राइस बढ़ाते जाएंगे, कब तक बढ़ाएंगे आप? इन्फ्लेशन तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर उस रेट से प्राइस बढ़ाने लगेंगे तो फिर आपका कस्टमर बेस बहुत कम होना शुरू हो रहा है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जा रही है। उसके बाद एक और चीज हो गई है इस बीच में, अगर हम इसको डिलीवरी बिजनेस में देखें तो डिलीवरी का जो कमीशन है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जो कमीशन पहले, आपको विश्वास नहीं होगा, पहले निगेटिव कमीशन हुआ करता था। हम उस जमाने के हैं जब टाइनी हॉल हमको हर ऑर्डर पे 50 रुपीज दिया करता था। कि आप ऑर्डर डिलीवर करिए, हम आपको, अगर आप ये ऑर्डर 15 मिनट में डिलीवर कर देंगे तो 50 रुपए देंगे, और अगर आप 30 मिनट में डिलीवर कर देंगे तो 30 रुपीज देंगे। तो हमको पहले ऑर्डर के लिए कमीशन मिला करता था। फिर हम न्यूट्रल पे आए, फिर जोमेटो ने शायद 0% डिलीवरी शुरू किया, उसके बाद फिर वो 5% रहा, और अब बढ़ते बढ़ते अगर कोई अब नया रेस्टोरेंट है तो वो 25% कमीशन दे रहा है। तो कमीशन इंक्रीज हुआ है, पैकेजिंग कॉस्ट इंक्रीज हुई है। प्लास्टिक से जैसे ही हम लोग पेपर पे आए हैं, हमारी पैकेजिंग कॉस्ट डबल हो चुकी है। अब उतना आप पास ऑन नहीं कर सकते कस्टमर, तो पैकेजिंग कॉस्ट बढ़ी है, आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, कमीशन बढ़ रहा है, तो जो मार्जिन है वो कम होता है। और वो मार्जिन इतने सेंसिटिव हो चुके हैं, आप इतने शार्प एज पे हैं आप कि आप कभी भी इस साइड या उस साइड जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किसी भी रेस्टोरेंट को अभी सर्वाइव करने के लिए उसको बहुत हेल्दी कैश फ्लो मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
अगर उसके पास सरप्लस नहीं होगा तो पिछली बार जो हुआ कोरोना के टाइम पे काफी Same रेस्टोरेंट इसीलिए क्लोज हो गए क्योंकि उनके पास Surplus सफिशिएंट नहीं। सरप्लस नहीं था। अगर उनके पास सफिशिएंट सरप्लस होता तो शायद वो 2-3 साल सर्वाइव कर जाते और उसके बाद वापस से बिजनेस ठीक हो जाता। बट टू सर्वाइव दैट डिफिकल्ट पीरियड, और वो डिफिकल्ट पीरियड कभी भी आ सकता है। दूसरा जो हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द फॉर्मुलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, लाइक अगर आप सारे रेगुलेशंस देखें आज की तारीख में, गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो हैं, अब किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट को सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। इन द सेंस टैक्सेशन इश्यूज बहुत ही क्लियर हो चुके हैं। पहले तो लोग कैश में काम चला लेते, कुछ टैक्स भरा नहीं भरा सब चलता था। अब तो हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन है, जीएसटी आ गया है, मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स आर ऑनलाइन। तो अब जो भी इनकम आ रही है सब कुछ जीएसटी में जा रही है, इनकम टैक्स में जा रही है। तो कुछ लोग जो वहां से ट्विक कर लेते थे वो सारे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसको आप एज ए बेनिफिट समझिए कि फॉर्मुलाइजेशन होने से जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल, क्योंकि जो लोग गलत काम कर रहे थे वो सारे इसमें वीड आउट हो जाएंगे, वो सारी सफाई हो जाएगी। तो फॉर्मुलाइजेशन होने से जो छोटे रेस्टोरेंट थे उनको डेफिनेटली डिफिकल्टी आई है, क्योंकि काफी सारा काम उनका चल जाता था पहले, पर अब चूंकि फॉर्मुलेशन हो रहा है उनको भी सारे लाइसेंसेस लेने पड़ रहे हैं, सारा कुछ उनको भी डॉक्यूमेंटेशन पूरा रखना पड़ रहा है। उसके कारण भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। Any advice that you want to give the newcomers to enter the industry? एडवाइस देने के पहले तो मैं वार्निंग देना चाहूंगा। Yeah, that's a better word actually. Actually, because it's a difficult business, है ना। आप भी इस इंडस्ट्री से हैं, तो आपको पता है कि बहुत लोगों को शौक होता है रेस्टोरेंट। अच्छी खासी लाइफ चल रही होती है, मतलब दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है कि जिनको कुछ करना है तो कुछ करने में ये सिलेक्ट हो जाता है कि यार ये रेस्टोरेंट कर लेते हैं, हाँ तो समझ में आता है। पर कुछ लोगों को शौक होता है कि रेस्टोरेंट करना है, मेरा भी एक रेस्टोरेंट, और कई बार वो इस इंडस्ट्री में घुस जाते हैं ये सोच के कि ये बहुत ही मजेदार इंडस्ट्री है, बड़ा मजा आएगा और बहुत इजी इंडस्ट्री है। उनको लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, और पैसा है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा नहीं है। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आप बहुत पैसा है, डेफिनेटली आप सैलरी में उतना कभी नहीं कमा पाएंगे, या किसी और बिजनेस में भी शायद उतना नहीं कमा पाएंगे जितना रेस्टोरेंट में कमाएंगे। मार्जिन्स आर बेटर। इस इंडस्ट्री का एक बहुत बढ़िया बेनिफिट ये है कि इसमें जो कैश फ्लो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब आप कस्टमर से पहले पैसा लेते हैं और वेंडर्स को बाद में देते हैं। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कैश फ्लो बहुत बढ़िया चलता है। आप कोई और बिजनेस करने जाएंगे तो उल्टा होगा, क्रेडिट। तो आपको जो कस्टमर होगा वो तो पेमेंट करेगा नहीं, सप्लायर को आपको उल्टा पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपके टर्म्स अच्छे नहीं है। तो कैश फ्लो का बड़ा प्रॉब्लम होता है। इस इंडस्ट्री में कैश फ्लो बेटर है। दूसरा, इसमें स्टार्टिंग के टाइम पे एटलीस्ट कुछ कस्टमर तो आ ही जाते हैं, तो ये एटलीस्ट स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी नया रेस्टोरेंट खुलता है तो मैंने देखा है कि फर्स्ट मंथ तो चलता ही है, तो फर्स्ट मंथ का प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम होता है इस इंडस्ट्री में सेकंड मंथ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब वो जो पहले महीने का स्टाफ भाग जाता है। अगर आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं है कि वो जब स्टाफ फर्स्ट मंथ के बाद भाग जाएगा तो आप क्या करोगे। Are you ready to wash the utensils? Are you ready to cook the food? Are you ready to serve the customer? Are you ready to clean the tables? तब तो आप स्टार्ट करो, अदरवाइज आप स्टार्ट ही मत करो। इस इंडस्ट्री में आपको सब करना पड़ेगा। आपको टेबल, मैंने भी टेबल साफ किए ना, मैं आई एम बैंगलोर से ग्रेजुएट हूँ। मेरे साथ के दोस्त भी आते थे खाना खाने और वो भी देखते थे कि मैं टेबल साफ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका क्लीनिंग स्टाफ नहीं आया है तो आपको टेबल साफ करना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए रेडी नहीं है तो इस इंडस्ट्री में आओगे नहीं। सेकंड, ये इसमें आपको लंबा टाइम देना पड़ता है, लंबा टाइम दोनों तरफ से, मतलब दिन का काफी टाइम आपको इसमें देना पड़ता है। दूसरा, इसको सक्सेस होने के लिए भी काफी टाइम देना पड़ता है। अगर आप सोच रहे हो कि फर्स्ट ईयर से ही आप पैसा बनाने लग जाओगे तो वो सही नहीं है। इस इंडस्ट्री में आपको एटलीस्ट 4 या 5 ईयर्स देना पड़ता है। आप ब्रेक इवन कर लोगे, ब्रेक इवन करना चाहिए, बट अगर आप सोचो कि मैं बहुत बड़ा पैसा शुरू साल से ही बना लूंगा तो इक्का दुक्का ब्रांड है जिन्होंने ये किया है, अदरवाइज ज्यादातर लोगों को एटलीस्ट 5 ईयर्स लगते हैं। किसी भी बिजनेस को 4 या 5 साल लगते हैं। उसके बाद उसका एक कस्टमर बेस बनता है, रिपीट कस्टमर बनते हैं जिनकी एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम होती है, और तब आप पैसा बनाना शुरू करें, और उसके बाद फिर आप काफी पैसा बना सकते हो, बट 5 साल लगता है। दूसरा, आपको किसी दिन में भी काफी टाइम देना पड़ता है। इट्स ए फुल टाइम जॉब, एटलीस्ट फॉर द इनिशियल 10 ईयर्स तो आपको फुल टाइम जॉब चाहिए। तो आपको मॉर्निंग से लेट नाइट तक वर्क करना पड़ेगा। बहुत चैलेंजेस हैं, इसलिए मैंने पहले सोचा कि वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि पर्सनल लाइफ है ना, और जो आप बोलते हैं लाइफ और वर्क बैलेंस होना चाहिए, या फैमिली लाइफ कि कैसे करते हो आप? ये सब शुरू के 10 साल तो आप भूल जाओ। शुरू के 10 साल कुछ नहीं होता। थैंकफुली हमारा चूंकि फैमिली बिजनेस था तो ये इजी रहा। अगर आप स्टैंड अलोन ये शुरू कर रहे हैं और अगर आपके पास पार्टनर भी नहीं है
तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आई सजेस्ट जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं एटलीस्ट पार्टनरशिप में स्टार्ट करें। 2 लोग होंगे तो दर्द को डिवाइड कर पाएंगे। अगर आप अकेले हैं और आपकी फैमिली भी इस बिजनेस में नहीं है तो कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फैमिली बिजनेस के लिए इजी होता है बिकॉज पूरी फैमिली इस चीज को समझती है, तो तब थोड़ा सा इजी हो जाता है। और वो जो हम वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब आपके वर्क और लाइफ मिक्स हो जाती है, तो वो आपको फिर अलग अलग सेपरेटली उसको नहीं देखना पड़ता, तो अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। अब अगर सजेशन की बात करें तो मेरा सबसे बड़ा सजेशन जो मैंने देखा है, ज्यादातर रेस्टोरेंट जो फेल होते हैं वो उसी कारण से होते हैं जो इसके सक्सेस के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है, और शायद हर रेस्टोरेंट वाला ये बोलता है कि लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और ये बहुत लोग काफी इग्नोर करते हैं। मैंने भी किया है, मैंने 6-7 लोकेशन चेंज किए और शायद उसमें से 5 गलत लोकेशन। हर बंदा ये गलती करता है और मैं सबको यही सजेशन दूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए क्विजिन आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्विजिन तो आपने डिसाइड सबसे पहले कर ली, जो आपको पसंद है वो शुरू करो। मेरा सिंपल रूल है, मेरा सब सिंपल सजेशन है, एटलीस्ट आपको देखना पड़ेगा, बट मेरा सजेशन ये जो आपको समझ में आता है वो शुरू करो, है ना। किसी नॉर्थ के बंदे को बोलेंगे तो वो शायद पराठा या छोले भटूरे ही स्टार्ट करेगा, वो वड़ा पाव स्टार्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आता, है ना। वो शायद डोसा शॉप नहीं खोलेगा, किसी साउथ के बंदे को बोलेंगे तो वो शायद डोसा शॉप खोल देगा, किसी हैदराबाद के बंदे को बोलेंगे तो वो बिरयानी खोल देगा, तो उसको समझ में आता है। मैं नॉर्थ से था, मुझे सिंपल घर का खाना समझ में आया, मैंने क्विजिन डिसाइड कर दिया, मैं होममेड फूड बनाऊंगा। तो क्विजिन बहुत इजी होता है डिसाइड करना, बट सबसे डिफिकल्ट होता है लोकेशन डिसाइड करना। एंड व्हेन आई से लोकेशन, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेन रोड पे होना चाहिए, अच्छा लोकेशन होना चाहिए या काफी कस्टमर को विजिबिलिटी होना चाहिए, वो तो इम्पोर्टेंट है। व्हेन आई से लोकेशन, बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग को जाके देखो, बिल्डिंग कैसा है, बिल्डिंग में दूसरे टेनेंट कौन है, एंट्रेंस किधर से है, एग्जिट किधर से है, गार्बेज हम किधर रखेंगे, ड्रेनेज का लाइन कैसा है, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है थोड़े टाइम के बाद। हम लोग सारी चीजें ये तो कवर कर लेते हैं कि अगर बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, लेकिन हम कई बार ये सोचना भूल जाते हैं कि बिजनेस अगर चल गया तो क्या होगा। अगर आपकी 100 की कैपेसिटी में 200 लोग आ गए तो आप किधर बिठाओगे उनको, खड़ा किधर करोगे। कई बार हम लोग पार्किंग के बारे में सोचते नहीं, और मैंने भी नहीं सोचा था जब मैंने एक आउटलेट लिया था HSR में, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि गाड़ी कहाँ रखेंगे लोग। मैंने एक टाइम ऐसा था कि जब मैंने देखा कि मेरे पास 40-45 डिलीवरी बॉयज हमेशा खड़े होते हैं, तो मेरे पास जो 4 कार पार्किंग थी, जिसका मैं सोच रहा था कि ये कार पार्किंग के लिए यूज होगा, वो 4 कार पार्किंग में 40 डिलीवरी बॉय खड़े होते थे। तो कार पार्किंग 0 था तो कस्टमर कोई नहीं आया, वो आउटलेट मुझे क्लोज करना पड़ा। तो कई बार आप बिल्डिंग को देखना भूल जाते हैं, बिल्डिंग की लोकेशन, बिल्डिंग की क्वालिटी, बिल्डिंग और उसके नेबर्स उस बिजनेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई सारी लोकेशन हमने इसलिए चेंज करी क्योंकि वहाँ का जो लोकेशन था वो रेसिडेंशियल था, और वहाँ पे आप एक लिमिट से ज्यादा बिजनेस को नहीं ग्रो कर सकते। मेरी एडवाइस यही है, लोकेशन आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम दीजिए और किसी दूसरे रेस्टोरेंट वाले की मदद लीजिए जिसने ये काम ऑलरेडी किया हुआ है, जिसने ये काम 5 से 10 साल किया हुआ है, उसकी मदद लीजिए। वो उसके साथ घूमिए, आप उसको दिखाइए, अपनी 10 लोकेशन उसको दिखाइए, भले उसके लिए आपको कंसल्टेंसी फीस देना पड़े। किसी कंसल्टेंट को देने की बजाय आप किसी रेस्टोरेंट वाले को पकड़िए और उसके साथ घूमिए, उसको लोकेशन दिखाइए। लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने मन बना ही लिया है कि मैं इस इंडस्ट्री में ही आऊंगा, वार्निंग तो दे रहे हैं कि मत करो, बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है, बट अगर आपने मन बना ही लिया है तो एटलीस्ट लोकेशन ठीक करो। आधे रेस्टोरेंट लोकेशन गलत होने के कारण फेल होते हैं, या तो वो लोकेशन मतलब विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, या कार पार्किंग की प्रॉब्लम है, या वो लोकेशन की जो बिल्डिंग है वो उस बिजनेस को सपोर्ट ही नहीं कर पा रही। So that was our final question, and we'll have some fun time now. We have some rapid fire questions, which you shouldn't think. You should just answer whatever comes to your mind. Okay. So the first thing is, what's your favorite dish to cook? I'm not a cook, but yeah, if given a choice, I will cook khichdi. Khichdi. It's very easy. That one ingredient you cannot live without. Ghee. Ghee. Oh, okay. Biggest confusion between coffee or tea? So coffee or tea? Tea. Anytime. Tea. Okay. Sweet or savory? Difficult, but savory. Savory. Given choice. Okay. Yeah. Your go-to comfort food after a long day? Dal rice. Simple homemade dal rice. Okay. Are you an early morning prep or a late night cleaner? Late night. I am not the early morning guy. Okay. Okay. So the most underrated ingredient?
Hing. Thing. Yeah. Yeah, you're like ये तो होना चाहिए, but why don't people use it? Okay, so your most favorite restaurant other than yours? भगत ताराचंद. So the one kitchen gadget you swear by कि ये तो होना ही चाहिए किचन में. अगर मेरे किचन की बात करूँ मतलब तो मेरे पास कॉपर का कढ़ाई टाइप है, तो Okay. वो मुझे चाहिए, मतलब मैं उसमें सब बना लेता हूँ. Got it. So eat in or take out? Eat in anytime. Although we are a delivery outlet, but you know, eat in is Eat in is definitely a better. different thing. So if at all you have to cook a dish, you would never want to cook this again. You know, I tried once making cake, Okay. and it was a horrible experience. I never tried it again, and I will never Never try tried again. Okay, that bad an experience. Okay. If you weren't a restaurant owner, what would you be? Not a restaurateur, then probably I would have taken training about options or something Got in that line only. Understood. So what's your guilty pleasure food? Guilty pleasure food: aloo paratha, puri bhaji. I mean, I like it, but I can't have it. You have more. it more. Okay. So do you like the front of the house or the back Front of of the house. Front. I mean, I do not know about the back of the house. Achha, Mostly, हाँ, that's so why you- the front of the house. I do not know about the kitchen, so I do not interfere into in the the kitchen. kitchen. Got it. And the last and the important question: what's the most annoying request you've received till now from the customer? Like puri without oil. Understood. That Puri is- without oil. And it's That very is difficult. impossible, right? Okay, thank you so much for sharing Thank you. all your knowledge in the Thank you industry. for having me here. Thank you so much. It's going to help a lot of people, and I'm pretty sure that whatever knowledge you have told them, they will apply it and not do that mistake again. Yeah. Thank you so much for meeting with us today, Thank you. Dilip sir. Thank you.